Fine. Hope all are enjoying the study also. Now, after the Durga Puja, now comes to the next chapter of physics, work and energy. In this chapter, we are going to discuss what is the meaning of the work done and types of work done, then comes the energy, different forms of energy, kinetic energy and potential energy, and then conservation of energy, and at last the power, and then some basic numerical. Okay, so directly we come on to the work done. Work done. What is the meaning of the work done? Work done in the daily life, usually if any kind of physical and the mental activity is termed as the work done. But in physics, it is not the mental work. In physics, we are talking about only physical work done. Physical work done is termed as the work done in physics, not the mental work done. जैसे मान लो अगर कोई एक स्टूडेंट 4 घंटा के लिए एक बेंच पे बैठ कर पढ़ाई कर रहा है, तो वो वर्क डन के श्रेणी में नहीं आएगा. इट इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द वर्क डन. लेकिन अगर वही स्टूडेंट मूव कर रहा है, फोर्स लगा के मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तब वो फिर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, वो वर्क डन हो रहा है. अब इसमें देखिए वर्क डन का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क डन? वर्क इज सेड टू बी डन. ध्यान से देखिए, सपोज यहां पर एक ब्लॉक है, हेवी ब्लॉक है. वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ force is applied. If the force is applied, an object displaces in the direction of the force applied. Object displaces in the direction of the force applied. So remember the definition. Work is said to be done if a force is applied on an object displaces in the direction of the force applied. Then we are going to term as the work done. Right. Now, formulation of how we are going to make the formula of the work done. Now, just to see it here. Work done. Here the force is required. So, number 1, if the object is horizontal, object is moving horizontal. The first case means the object is moving horizontal. Horizontal means object is moving in this way. Horizontal. Then work is the product of force into displacement. Force into displacement. S stands for the displacement. S क्या है? Displacement. और फोर्स कौन सा है? F क्या है? फोर्स. यहां पर कौन सा फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? एग्जांपल, if a force is applied, if the 5 Newton force is applied, then continuously 5 Newton, 5. That is a constant force. So we are talking about constant force here only, not the variable. Then it is horizontal. If the object is moving horizontally, then work done is the product of force and displacement. Clear? Now comes to the point. If the object moves obliquely, what is the meaning of this? Obliquely. Object कैसे मूव कर रहा है? जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है. Object is moving in this way, obliquely.
ये कौन सा केस है? जैसे मान लेते हैं एक ब्रीफ केस है, ऐसा कोई देखे होंगे, बड़ा सा ब्रीफ केस, एक चेन होता था, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है प्लेटफॉर्म पर, ब्रीफ केस के केस में। तो ऐसा केस, ये अगर ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली मूव कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑब्लिकली, तिरछा कोई कुछ एंगल बना के मूव कर रहा है, तब उस केस में हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ये देखिए, यहां तब इसका फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कौन सा केस है? वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑब्लिकली। जैसे यहां पर ये हम मान के चल रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन एंड इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसा अभी बताया था, यहां पर ब्रीफ केस का केस में कांस्टेंट फोर्स यहां लग रहा है और ब्रीफ केस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये एरो मार्क क्या इंडिकेट करता है कि इट इज अ वेक्टर कोऑर्डिनेट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। नाउ आवर पर्पस इज टू फाइंड द वर्क डन इन दिस केस। अब देखिए क्या करते हैं, we have to draw a perpendicular like that. Draw a perpendicular. Now the component of the force, remember, component of the force in the direction of the displacement we have to find out. So component हम लोग कैसे निकालते हैं? ओ, ये मान लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी है। अब देखिए इसका कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? वी हैव, हमको फाइंड क्या करना है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं? ये मैथ्स में भी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए कंपोनेंट जब भी हमको निकालना होता है, वी हैव टू यूज अ कॉस थीटा। एक रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो होता है साइन थीटा कॉस थीटा। क्या क्या रेशियो होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल, दिस एंगल, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं और ये साइड्स का रेशियो है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। cot थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और cosec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये अब ये राइट हैंड ट्रायंगल है, ये तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो कोई पूछेगा अगर cos थीटा निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा? ये बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सा? ये। तो हम लोग यहाँ cos थीटा निकालते हैं। कंपोनेंट का मतलब ही है cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, b बाय h, बेस s, यहां से यहां तक क्या था? डिस्प्लेसमेंट h। h मेरा क्या था? h था फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f cos थीटा। s इज इक्वल टू f cos थीटा। तो ये क्या है? ये हुआ कंपोनेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना था? s। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? f s cos थीटा, f s cos थीटा। स्टार्ट सर। सो हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो वर्क डन कितना आया? ऑब्लिक केस में आया था f s cos थीटा, f s cos थीटा। तो दिस इज द राइट एंड एग्जैक्ट
फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, एफ एस कॉस थीटा। कोई पूछेगा थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। So this is the exact very important formula, Fs cos theta, Fs cos theta. Remember, right? Now comes to the other topic, types of work done. Number 1, positive work done. पॉजिटिव वर्क डन मींस वर्क डन पॉजिटिव आएगा। कैसे? अगर हम लोग वर्क डन, अब वर्क डन का फॉर्मूला यही याद रखना, एफ एस कॉस थीटा। अगर हम लोग एफ एस कॉस थीटा जो फॉर्मूला है, एफ का वैल्यू है कुछ और एस का वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का, कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल। तो अगर कॉस का देखा जाए, रिमेंबर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, पॉजिटिव वैल्यू, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो cos 0 से लेकर 89.9 तक अगर एंगल है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो इफ cos थीटा, if the value of cos theta is positive, value of cos theta is positive, then this is your positive work done. इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। कैसे? जैसे मान लीजिए ये यूजुअली हम लोग थीटा इक्वल 0 ले लेते हैं और फिर अल्टीमेटली 0 लेने पर क्या हुआ, cos 0 अगर है तो ये +1 हो गया, f into s पॉजिटिव वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल यहां पर ये मान लेते हॉर्स कार्ड, एक घोड़ा और वो कार्ड को खींच रहा है, वन हॉर्स वो कार्ड को खींच रहा है F फोर्स से कार्ड को खींच रहा है कौन? घोड़ा, हॉर्स। और डिस्प्लेसमेंट भी ये आगे, ये कार्ड जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर आ गया कार्ड, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है कौन? हॉर्स। तो क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का भी वही डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का भी सेम डायरेक्शन है, इसीलिए यहां पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस 0 मींस cos 0 1 विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ f into s। वर्क डन आया पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव वर्क डन। अब दूसरा केस करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो सेकंड केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। यहां भी वही, अगर एफ एस कॉस थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा बोले cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0, cos 90 का वैल्यू 0। याद रखना है cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहां पर अगर थीटा 90 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? f into s into 0, 0 into anything 0, that is 0 वर्क डन। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग देखेंगे कि वर्क डन 0 हो रहा है? जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर मान लेते हैं यहां ये प्लेटफॉर्म है, क्या है ये? प्लेटफॉर्म है। एक यहां पर कुली है, कुली अपना लोड लेके, हेवी लोड लेके ऐसे इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ये क्या है? लोड, बड़ा सा हेवी बॉक्स है, उसको लेके मूव कर रहा है।
तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लोड जो है ये लोड, हेवी लोड, उसका फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स अर्थ। इट्स अ वेट, वेट जो है ये फोर्स लग रहा है, दैट इज m into g, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो यहां पर वो क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर पुली प्लेटफॉर्म के ऊपर से जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में जा रहा है हेवी लोड लेके, तो वर्क डन बाय द पुली इज 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका जो पैसा बनता आप नहीं दीजिएगा, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है यहां वर्क डन पुली का 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये और उसका जो लोड का फोर्स लग रहा है एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 is 0, that's why work done is 0. ये लोग 0 work done किए थे, not negative, that is 0 work, that is number 2 is the 0 work. Number 3 negative work. अब हम लोग आते हैं negative work. negative work, अब अगर मान लीजिए फोर्स का वैल्यू, वर्क डन का वैल्यू निगेटिव आता है, तो उस केस में निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर इसका वैल्यू निगेटिव आ जाए, निगेटिव, तो हम लोग बोलेंगे निगेटिव वर्क डन। कैसे निगेटिव कब आएगा? जैसे एग्जांपल कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, इंटरेस्टिंग, तो cos थीटा का वैल्यू मींस cos 180 हो जाए, तब इसका वैल्यू होता है -1। cos 180 का वैल्यू कितना होगा? -1। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? f s cos 180 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f s, मींस निगेटिव आया, इसलिए हम बोलेंगे निगेटिव वर्क। अब एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। कहां पर ये होता है प्रैक्टिकल एग्जांपल? निगेटिव वर्क डन। जैसे एक आदमी स्विम कर रहा है, तैर रहा है, स्विम कर रहा है, तो ये आदमी स्विम जब करना होता है तो क्या होता है? द पर्सन हैज टू पुल द वाटर और पुश द वाटर इन दिस डायरेक्शन, पीछे की ओर, ऐसे पीछे की ओर। यहां फोर्स लग रहा है और ये आदमी किधर जा रहा है? आगे की ओर, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर। ध्यान से देखिए, ये आदमी जो स्विमर है, वो अगर स्विम करना होता है, जैसे एक पॉन्ड है या एक लेक है, उसमें इस तरह से पानी को पुश करना होता है पीछे, बैकवर्ड, मींस दैट स्विमर इज अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड स्विमर himself or herself is moving ahead. ठीक है, स्विमर पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन खुद वो आगे बढ़ रहा है, मींस फोर्स का ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आपको पूछेगा, क्योंकि हमको थीटा निकालना है, पूछेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? ये एंगल, दैट इज 180. So here force and displacement both are oppositely directed. So that's why it is the negative work done. क्यों? क्योंकि cos 180 कितना होता है? अभी बताया -1, तो वर्क डन हो गया निगेटिव, f s -1, that is -fs, that is your negative work, that is the negative work. So we have discussed the work done, formulation of the work done, types of the work done. These are the very important, and you remember some numericals etc. We are going to discuss latter part and the energy also. This is the part 1. Okay, thank you.